بہت شکریہ۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 55 آیت دیکھیں گے۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے باپ آج کے دن تو نے ہمارے لیے یہ قائم کیا کہ ہم تیرے قربت میں، تیرے نزدیکی میں آ سکیں۔ محنت کرتے ہیں کہ تو اس وقت اپنے پاک روح کی ہدایت ہمیں عطا کر، تاکہ ہم بولنے والے ہم نہیں بلکہ تیرا پاک روح جو ہے وہ ہم میں سے ہو کر تمام تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ کلام کرے۔ محنت کرتے ہیں کہ تو ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہم نے پچھلے سنڈے، پچھلے اتوار کو بھی ہم نے پاکیزگی کے متعلق خدا کا کلام سنا اور سیکھا تھا۔ اور اگر میں چرچ میں ہوتا تو ضرور آپ سے پوچھتا کہ کیا حوالہ تھا، کیا آیت تھی، لیکن یہاں پر مجھے پتا ہے کہ سب نے اپنے مائکروفون میوٹ کیے ہوئے ہیں، تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ احبار 20 باب تھا اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت تھی، اور اس کا جو آیت تھی وہ ذرا سنیے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ اور آج میرے عزیزو ایک دفعہ پھر ہم خداوند کے حضور میں آئے ہیں، اور اسی حوالے سے لینٹ کے 5ویں اتوار کے حوالے سے ہم خدا کے کلام کو حاصل کیا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ یوحنا رسول کی انجیل میں بھی ہم عید فصح کا ذکر پڑھتے ہیں، اور کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیہات سے یروشلم کو جاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ میرے عزیزو، میں نے پچھلی دفعہ ایک بات یہ بھی کہا تھا کہ لینٹ از اے جرنی دیٹ موو ٹورڈ دا کراس۔ ہم اس سیزن میں ہیں، لینٹ کے اس سیزن میں ہیں جب ہم اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہم کراس کی طرف، گڈ فرائیڈے کی طرف، ایسٹر کی طرف اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں۔ اینڈ دس کراس لیڈس ٹو مسیح خداوند کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، مسیح خداوند کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کے جی اٹھنے کی طرف لے کے جاتی ہے، اس فضل کی طرف لے کے جاتی ہے جہاں پر میرے عزیز بہن اور بھائیوں ہم پاکیزگی کے بعد، پاک ہونے کے بعد، پاکیزہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو وہاں پر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں کلام مقدس میں، ہم نہیں لیکن تاریخ اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذاہب ہیں، بے شمار مذاہب اس دنیا میں اس وقت آ چکے ہیں۔ بلکہ میں اگلے دن ایک نمبر پڑھ رہا تھا
स्टैटिस्टिक पढ़ रहा था कि तकरीबन 63 या इससे भी ज्यादा शायद मज़ाहब जो हैं वो इस दुनिया में हैं। उनके मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा जो हैं वो गुजरे हैं और उनके पैरोकार भी बहुत हैं, और उन मजहबी रहनुमाओं ने किसी ना किसी मजहब की बुनियाद जो है वो इस दुनिया में डाली। मेरे अजीजों, उनके लाखों बल्कि करोड़ों पैरोकार इस दुनिया में मौजूद हैं। उनका जिक्र हम सुनते हैं, उनकी तालीमात जो है हम उसके देखते हैं कि लोग जो उनके पैरोकार हैं वो सख्ती से उस पर अमल करते हैं, मगर उनमें से कोई भी मरकर जिंदा नहीं हुआ। कोई भी ऐसा नहीं जो कि लोगों की खातर जिसने अपनी जान का फिदिया दिया हो और मसलूब हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐसा किसी का हम जिक्र पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है। खुदा का बेटा यीशु जो है वो सिर्फ इस एक वाहिद हस्ती है जो मुर्दों में से, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जी उठा। और जब हम इस बात को सुनते हैं, सीखते हैं, तो हमें फील होता है, हम ये जानते हैं कि यही हमारे ईस्टर के त्यौहार की बुनियाद है। इसीलिए यह बुनियाद है कि मसीह खुदावंद ने इस दुनिया में मुनादी की, मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अभी हमने अपोस्टल्स क्रीड भी पढ़ी, हमने देखी, और उसमें से उस क्रीड में हमने यही सुना और पढ़ा कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा है। मेरे अजीजों, अब हम आते हैं उस तरफ, उस ईद की तरफ, ईद फसा की तरफ। इस त्यौहार का अक्स जो है, ईस्टर के त्यौहार का अक्स जो है वो हमें ईद फसा में नजर आता है। ईद फसा में हम देखते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही पाकी, अपने आप को लोग पाक करवाने जाते हैं, पाक होते हैं, और फिर वो ईद फसा को, अब ईद फसा क्या है? बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो इस बात को समझते हैं, लेकिन उनके लिए जो नहीं समझते, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप सबको पता है कि इस्राएली, बहुत सारे इस्राएली जो थे वो मिस्र की गुलामी में थे, और ये जब उनको उस गुलामी से छुटकारा मिला तो उसकी याद में ये ईद फसा जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, वो मनाई जाती है। और उस वक्त उन्होंने, इस्राएली लोगों ने, यहूदियों ने अपने दरवाजे की चौखटों पर बर्रे का खून लगाया, और वो तमाम तकाजे जो उनको उस मिस्र की रवानगी से पहले पूरे करना थे, लाजम थे, वो उन्होंने पूरे किए। और जब उन्होंने पूरे किए तो मेरे जो वो सब के सब जिन्होंने वो तकाजे पूरे किए, जिन्होंने बर्रे का खून अपनी चौखटों पर लगाया, वो सब के सब बच गए। फरिश्ता जो है वो उनके घरों को छोड़ता गया, लेकिन जहां पर वो बर्रे का खून नहीं था, जिन्होंने तकाजे पूरे नहीं किए थे, उनको वो मेरे अजीजों वो हलाक होते गए। एक और ईद फसा का जिक्र भी हम देखते हैं कि ईद फसा जो है वो फतीरी रोटी या फतीरी रोटी यानी कि नाखबीरी रोटी
اور عید ساگ پات کے یعنی کہ کڑوے ساگ پات کے دن جو ہیں وہ بھی کہلاتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں ان کی ہسٹری دیکھیں, جیوز کی ہسٹری دیکھیں, یہودیوں کی ہسٹری دیکھیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج بھی عید فصح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج بھی وہ فصح کے برا اور فطیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ عید فصح جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. میرے عزیزو, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسٹر کا تہوار جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم ایسٹر کے تہوار کو مناتے ہیں. اب ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسٹر کا تہوار جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ عید فصح جو ہے وہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ پاک ہونے گئے اور جن جن کے دروازوں پر, چوکٹوں پر وہ تمام برے کا خون تھا, وہ تقاضے پورے کیے تھے, فرشتہ ان کو چھوڑتا گیا. ان کو اس نے موت نہیں دی, ان کو مارا نہیں, بلکہ ان کو چھوڑتا گیا. اب ایسٹر کا تہوار ہمیں کیا بتاتا ہے؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ تہوار ہمیں نہ صرف خدا کے ان کاموں کی یاد کا تازہ کرتا ہے جن کا ذکر ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے لوگوں کے لیے مصر میں انجام دیے وہ تمام کام اس لیے انجام دیے گئے تاکہ وہ مصر کی غلامی سے رہائی حاصل کر سکیں. بلکہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے گلگتہ کی پہاڑی پر موت اور عالم روا پر فتح پائی. یعنی اس نے اس پہاڑی پر, اس لیے ہم اس کو بڑا ریزیمبل کرتے ہیں تاکہ عید فصح کے ساتھ ایسٹر کو انہوں نے رہائی کو حاصل کیا مصر کی غلامی سے, اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گلگتہ کی پہاڑی پر یسوع المسیح نے عالم روا پر فتح حاصل کی اور اس دن کو منانے کے لیے اس مرکزی نقطہ کو حاصل کیا. اب مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ کیا نقطہ ہے جو ہم اس میں سے نکالتے ہیں مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے؟ اور اس فتح کے موقع پر مسیح خداوند کو ایک اختیار دیا گیا. یہ مرکزی نقطہ ہے. مسیح خداوند کو ایک اختیار دیا جاتا ہے, اور وہ اختیار کیا ہے؟ وہ اختیار ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں مسیح خداوند کے اوپر ایمان لانے سے ہم اس موت سے بچ جاتے ہیں, روحانی موت سے ہم بچ جاتے ہیں, بلکہ کامل چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. یہ ہے وہ مرکزی نقطہ جس کو ہم بالکل مکمل طور پر اس کو عید فصح کے ساتھ ہم میچ کرتے ہیں. میرے عزیزو, لیکن ایک وجہ نہیں, ایک اور وجہ بھی ہے, اور وہ وجہ کیا ہے کہ اس تہوار میں, مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے تہوار میں, یعنی کہ ایسٹر کے تہوار میں, ہم سب کو جو خدا کے فرزند ہیں, جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ان میں ہمیں مستقبل کی روشنی کی کرن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. یعنی ہم اس دن کی یاد ہمارے اندر تازہ ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں فرق طریقے سے میں کہتا ہوں, لینٹ کا وہ ٹائم جو ہے ہمیں ان تمام باتوں کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے, ان تمام مشکلات کو جو مسیح خداوند نے ہمارے لیے برداشت کی,
दुख जो बर्दाश्त किए, उनको हमें उस दिन की याद हमारे दिलों के अंदर, हमारे ज़हनों के अंदर ताजा होती है। और गोया हम क्या करते हैं कि हम उस दिन की याद को हम ताजा करते हैं। और वो कौन सा दिन है? वो दिन जो है कि खुदा का बेटा यीशु फिर इस दुनिया में आएगा। यीशु मसीह फिर उस दुनिया में आएगा और हम सबको, जो उसके फर्जंद हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो ईमान में उसके साथ शरीक हैं, जो उसकी मौत में उसके साथ शरीक हैं, जो उसके खून में उसके साथ शरीक हैं, जो उसकी जी उठने में उसके साथ शरीक हैं, हम सबको वो आसमान पर ले जाएगा। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि हम मसीह खुदावंद के साथ उस पहली क़यामत में शरीक होने के लिए बुलाए गए हैं? और जब मसीह खुदावंद आएगा तो वो हमें अपने साथ ले जाएगा। वो लोग जो मसीह खुदावंद जिनको अपने साथ ऊपर उठा लेगा, सिर्फ ऊपर उठाए नहीं जाएंगे, बल्कि उन पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप जरूर लिख लें। उन पर जो ऊपर उठाए जाएंगे, जो मसीह खुदावंद के साथ ऊपर जाएंगे, उन पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं होगा। दूसरी मौत कौन सी है? रूहानी मौत। उसका कोई इख्तियार नहीं उनके ऊपर होगा। और मेरे अजीज बहन और भाइयों, यही हमारे लिए मुस्तकिल ईस्टर है। हमारे लिए मुस्तकबिल का ईस्टर है कि जिस दिन खुदा के लोग जो हैं वो जलाल पाएंगे, ग्लोरिफिकेशन हासिल करेंगे, ग्लोरीफाइड बॉडी हासिल करेंगे। बल्कि यह है कि हम यकीन कर लेते हैं, हमें यकीन हो जाता है, हमारा ईमान है कि खुदा का कोई भी फर्जंद ऐसा नहीं होगा जो मुस्तकबिल के ईस्टर की खुशी का तजर्बा हासिल नहीं करता। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम इस 5वें संडे में दाखिल हो चुके हैं। लेंट के 5वें संडे में दाखिल हो चुके हैं और मेरे अजीजों, हम उस खुशी का इंतजार कर रहे हैं। हम उस खुशी को मनाने के लिए बेताब हैं और हमारे लिए वो अल्फाज हमारा इंतजार कर रहे हैं। मसीह खुदावंद के वो अल्फाज हमारा इंतजार कर रहे हैं कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरे पास आ जाओ। इसलिए कि मैं आपको मुस्तकबिल के ईस्टर के लिए पाक करना चाहता हूं। क्या सवाल जो मेरे जहन में आता है कि हम इसके लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? मसीह खुदावंद हमें बुला रहा है, वो चाहता है कि हम उसके करीब आए, वो ये चाहता है कि हम उसकी कुर्बत में आए। वो हमें बुलाता है और कहता है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, आए मेरे प्यार करने वाले लोगों, मेरे पास आ जाओ ताकि मैं आपको पाक करूं उस मुस्तकबिल के ईस्टर के लिए जो मसीह खुदावंद के इस दुनिया में आने से हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। मेरे अजीजों, और ये बात आज दोपहर मैं सबके दिलों के अंदर, जानों के अंदर नक्श कर देना चाहता हूं कि हमें जरूरत है कि हम उसकी आवाज को सुने। वो आवाज हमें दे रहा है, वो चाहता है कि हम उसकी आवाज सुने और ये इन अल्फाज को अपनी जानों के अंदर नक्श करवा दें। जब हम इन तमाम बातों को सुनते हैं तो मुझे एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारी जमीनी जिंदगी
होती है, उसी तरह हमारी रूहानी जिंदगी भी है। हम अपनी जिस्मानी पाकीज़गी के लिए क्या करते हैं? अभी पिछले 2-3 साल कोविड रहा है, बार बार हमें यह हदायत मिल रही थी कि बाहर जाओ तो हाथ दो, ये करो तो हाथ दो, वो करो तो हाथ दो, यानी अपने हाथों को साफ रखो ताकि हमारे अंदर किसी किस्म का जर्म्स जो हैं वो ना जाए। हम अपने आप को उस पाकीज़गी को हासिल करने के लिए अपने आप को पाक और साफ रखने के लिए बहुत सारे, कोई सैनिटाइजर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि कोई पाकीज़गी जो है, जिस्मानी पाकीज़गी, उसको हम हर वक्त उसका ख्याल रखें। अगर जब मैं ये कहता हूं कि जब हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे जिस्मों के लिए ये बेहद जरूरी है, तो इसी तरह रूहानी जिंदगी के लिए भी, जो ईमान के मुवाफिक हम गुजारते हैं, उसकी लिए भी हमारी जान, हमारी रूह की पाकीज़गी के लिए क्या कुछ बेहद जरूरी है, उसके लिए भी पाकीज़गी जरूरी है। उसके लिए भी यह जरूरी है कि जर्म्स जो है वो अंदर ना जाए। उसके लिए भी यह जरूरी है कि रूहानी तौर पर हम अपने आप को पाक करें। और पाक से क्या मुराद है? पाक से मुराद, मैंने पिछली दफा भी बताया था कि बेऐब होना, पाक से मुराद बेदाग होना, पाक से मुराद मिलावट से पाक और साफ होना। और हम ये कैसे हो सकते हैं? हम कैसे बेदाग हो सकते हैं? हम कैसे मिलावट से पाक हो सकते हैं? हम कैसे बेदाग हो सकते हैं और बेऐब हो सकते हैं? कैसे हम पाक हो सकते हैं? सुनिए गौर से। जब हम बर्रा के खून से बार बार अपने आप को धोते हैं ताकि हम हर एक गुनाह से अपने आप को पाक हो जाए, बर्रा के खून से धोने के जरिए, वसीला से हम अपने आप को पाक करवाते हैं, अपने आप को पाकीज़ा करवाते हैं। और इसके साथ साथ क्या, इब्लीस के उस हर दावे से हम आजाद हो जाते हैं जब हम बर्रे के खून से अपने आप को धोते हैं। अब बर्रे का खून क्या है? खुदा के बेटे की कुर्बत और उसकी नजदीकी में आने, जैसे आज हम खुदा के बेटे यीशु के गोश्त और खून में शरीक हुआ चाहते हैं, वो बर्रे के खून से हम अपनी उस जिस्म को, रूह को, अपनी उस जिस्म के अंदर उस रूह जो खुदा के ने हमारे अंदर दाखिल की है, उस कंटेनर में, जो हमारी जान के अंदर कंटेनर है, उसके अंदर जो रूह दाखिल की गई है, उसको हम पाक और साफ करते हैं। और मेरे अजीजों, फिर हमें अपने दिल को पाक और साफ करने की फिक्र जो है वो हमें सताती नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम जानते हैं कि खुदा के फर्जंद होने की हैसियत से, खुदा के बेटे और बेटियां होने की हैसियत से हमें एक फिक्र जो है वो हर वक्त, हर रोज सताती रहती है, दिन रात सताती है। और वो क्या फिक्र होती है कि हम कैसे अपने आप को बर्रे के खून से पाक और साफ कर सकते हैं। और ये मेरे अजीजों, ये एक हकीकत है कि गुनाहों की मुआफी जो है वो हमारी होना लाजमी है। और गुनाहों की मुआफी क्या है? गुनाहों की मुआफी से हमारे गुनाह जो हैं वो मिटा दिए जाते हैं। गुनाहों की मुआफी से हमारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। मगर यह बात गौर से सुनने वाली है, गुनाह जो है वो जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। गुनाहों की मुआफी, अब्सोल्यूशन प्रोनाउंस करने से हमारे गुनाह जो हैं वो तो मिट जाते हैं, लेकिन गुनाह जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। बड़े सोचने वाली बात है। इसलिए फिर क्या होता है
कि किस तरह से हम इस बात को अपने अंदर फील कर सकते हैं कि हमारे गुनाह जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारे मुआफ कर दिए गए हैं, वो गुनाह जो है वो जड़ से उखड़ गए हैं। अब हम पाक और साफ ग्लोरिफिकेशन के लिए तैयार हैं। हमारी बॉडीज जो हैं वो ग्लोरीफाइड बॉडीज जो हैं उनमें दाखिल होने के लिए, शामिल होने के लिए, ग्लोरीफाइड बॉडीज में के उस हजूम में शामिल होने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों सुनिए, जब हम अपने मिजाज को हर तरह की गंदगी से पाक कर देना चाहते हैं और फिर गोया हम अपने उस मिजाज को, जो कि मसीह खुदावंद का मिजाज है, उस यस्सु के मिजाज की मानद अपने आप मिजाज को बना लेते हैं। जब तक हम मसीह खुदावंद के मिजाज के मुताबिक अपना मिजाज नहीं बनाते, अपने मिजाज की इस्लाह नहीं करते, अपने उस गलत रवैये को पीछे नहीं फेंकते, मुआफ नहीं करते, हम उस मसीह खुदावंद के मिजाज के मुताबिक अपने आप को बना नहीं सकते। अब मिजाज को बनाने के लिए क्या जरूरी है? मिजाज को ऐसा करने के लिए मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये जरूरी है कि हमारे रवैये, हमारे एटीट्यूड जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक हों, वो तब्दील हों। रवैये की तब्दीली जो है, रवैये की तब्दीली बहुत जरूरी है। और रवैये कैसे तब्दील होते हैं? जब हमारे रवैये तब्दील हो जाते हैं तो गोया हम, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उस बर्रे के खून के वसीला से अपने आप को पाक और साफ जो है वो करवा लेते हैं। और यही वो काम है जो हम सबको, आपको, मुझे, तमाम लोग जो खुदा के फर्जंद अपने आप को कहलाते हैं या चाहते हैं कि वो अपने आप को तैयार करें मसीह खुदावंद की आमद के लिए, ये ही वो काम है जो हमें अपने ऊपर अंजाम देना है। ये मुझे अपने ऊपर अंजाम देना है, आपको अपने ऊपर अंजाम देना है। रवैये की तब्दीली। और रवैये की तब्दीली क्या है? रवैये की तब्दीली पुरानी इंसानियत की तब्दीली है। उस पुराने इंसानियत को बाहर निकालना है और उस नए इंसानियत को उस रवैये की तब्दीली के जरिए से अपने अंदर बदलकर उस नई इंसानियत को पहन लेना है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, और यही आज हम ईद फसा की उस बेखमीरी रोटी, जिसका जिक्र हमने अभी कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, और यही ईद फसा का हिस्सा है, बेखमीरी रोटी। उस बेखमीरी रोटी की मानद हमें बनने की जरूरत है। उस वक्त भी जब जिसका जिक्र हम अभी यहां पर कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि लोग, बहुत से लोग यरूशलेम से, देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें, ईद फसा के लिए अपने आप को पाक करना चाहते थे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बेखमीरी रोटी ईद फसा का हिस्सा थी। और खमीर का असूल क्या है? खमीर का असूल यह है कि पुराने गूंदे हुए आटे में से कुछ लेकर ताजा गूंदे हुए आटे में मिला दिया जाए तो वो तमाम का तमाम आटा जो है वो खमीर हो जाता है। मगर क्या है, हमारी बातनी जिंदगी जो है, हमारा बातनी एटीट्यूड जो है, हमारी बातनी रवैया जो है, उसके लिए ये जरूरी है और लाजम है कि वो बेखमीरी रोटी की मानद हो।
मेरे अजीजों, यानी वो पुरानी फितरत से बिल्कुल पाक और साफ हो, उसमें जरा सा भी खमीर जो है उसमें ना दाखिल हो, उसमें शामिल ना हो। और हमने अभी कलाम मुकद्दस में से ये भी पढ़ा कि वो कड़वे साग पात, वो जब ये ईद फसा जो है वो बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के दिन कहलाते थे। अब कड़वा साग पात क्या है? कड़वा साग पात से क्या मुराद है? वो क्या था? अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि ये फसा के वक्त उस कड़वाहट की अलामत था जो बनी इस्राएल को मुल्क के मिस्र में बर्दाश्त करना पड़ी। कड़वा साग पात की कड़वाहट जो है। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि मिस्र की गुलामी से जब वो निकले, इस्राएली निकले, तो वहां पर पहली फसा के मौका पर बनी इस्राएल को बर्रा के साथ कड़वा साग पात जो है वो खाना पड़ा। अब कड़वा साग पात जो है वो है क्या चीज? कड़वा साग पात हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि इस्राएली लोग जो हैं वो बने इस्राएल जो है वो खड़े होकर कमरे कसकर और अपने जूते पहनकर और अपना असा हाथ में लेकर जैसे कि वो जल्दी के सफर पर रवानगी के लिए तैयार हैं। लेकिन क्यों वो रवानगी के लिए तैयार हैं? क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था कि वो हर चीज को अच्छी तरह तैयार करें, और इसी तरह ना उनके पास वक्त था कि वो तैयार करें अच्छी तरह, ना उनके पास वक्त था कि वो इत्मीनान से बैठकर खाना खाएं। इसलिए वो कड़वा साग पात जो है वो जल्दी की अलामत है, वो कड़वाहट जो है वो जल्दी की अलामत है। मेरे अजीजों, हम भी जो खुदा के फर्जंद हैं, मसीह खुदावंद के इन दिनों में अपने आप को उस पुरानी इंसानियत को उतार देने के लिए हम पाकीज़गी को हासिल किए चाहते हैं। उस पुरानी इंसानियत से हम अपने फरागत चाहते हैं और उस नए इंसानियत को हम ओढ़ लेना चाहते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आइए आज दोपहर हम अपनी पुराने इंसानियत को उतार डालें। आज मौका है, आज इस वक्त, इस लेंट के इस संडे में आज ये मौका है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डालें और नए रवैये के साथ उस मसीह खुदावंद के उस फजल को थामे रहें जो वो हमें देना चाहता है, नए रवैये के साथ। लेकिन वो क्या है? फिर हम अपनी मंजिल को जां फशानी से हासिल कर सकते हैं। और हमारी मंजिल क्या है? कि हम खुदा के फर्जंद होते हुए उस मुकाम पर जाने के लायक ठहर सकें जो मुकाम खुदा के बेटे यीशु ने हम सबके लिए तैयार किया है। आइए आज शाम, आज दोपहर मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम भी अपने आप को पाक करवाएं और यरूशलेम में जाकर, जैसे देहात से वो बनी इस्राएल लोग यरूशलेम को जाते थे ताकि ईद फसा के लिए अपने आप को पाक और साफ करें, आज ये मौका है कि हम अपने आप को पाक और साफ करें और ईस्टर की तैयारी करें ताकि हम खुदा के बेटे यीशु के साथ उस ईस्टर में शामिल हो सके जो वो हम सबको आज के दिन दिया चाहता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यीशु की उस कुर्बानी के लिए जो ऐ बाप आसमानी उसने हमारे वास्ते दी।
ताकि हम उसके वसीला से उस अपने गुनाहों से रहाई को हासिल कर सके, ताकि हम उसके वसीला से उस जिंदगी को हासिल कर सके। आज का कलाम जो अब आप तेरे पाकरू की हदायत से हमें मिला है, हमने सीखा है कि हमें अपने रवैया को चेंज करना है, अपने रवैया में तब्दीली लानी है और मसीह खुदावंद की मानद अपने आप को बनाना है। मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता कर, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।